عورت شیر کہاں ہے؟ وہ خونخوار نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہا تھا جیسے اس نے عورت شیر کو کہیں چھپا دیا ہو۔ مجھے تو نہیں پتا کہاں گئے ہیں، وہ کل رات سے ہی گھر نہیں ہے۔ کل رات سے اس کا یوں بنا بتائے غائب ہو جانا اسے اب پریشان کر رہا تھا، ورنہ وہ جان بچی سو لاکھوں پائے کہ مصداق پرسکون رہتی تھی اس کی غیر موجودگی میں۔ تمہارا جواب نہیں میری بہن، کچھ تو عقل کر لو اب، اس سے پہلے کہ بات ہاتھ سے نکل جائے۔ اپنی مٹھی میں کر لو، اسے وہ رشتے دل و جان سے نبھاتا ہے، وہ رشتے دل و جان سے نبھاتا ہے، اور تمہارا تو اس کے ساتھ رشتہ بھی بہت گہرا جڑا ہے، شاید اسی لیے اب تک چپ چاپ نبھانے کی کوشش کر رہا ہے، ورنہ عورت شیر اور وہ کسی کی سن لے ایسا ممکن ہی نہیں۔ جو بھی ہوا میں اس میں تمہیں قصوروار نہیں کہتا، نہ اسے، مگر ایشل چندہ یوں نہیں کرتے کہ آپ اپنے شوہر کی سرے سے ہی نفی کر دو۔ جو بھی تھا جیسے بھی ہوا، مگر بہرحال شوہر ہے وہ تمہارا، تمہیں کم از کم سب کے سامنے اس کے ساتھ مس بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ وہ بہت بدل گیا ہے، خاموشی کی چادر اوڑھے وہ سب کو پرسکون نظر آنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن اگر تم غور کرو گی تو اس کی آنکھوں میں تمہیں اس طراب کی لکیریں واضح نظر آئیں گی۔ حد سے زیادہ اسموک کرنے لگ گیا ہے وہ، جب دیکھو کوئی نہ کوئی کام ہی کر رہا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ میں سگریٹ برابر جل رہا ہوتا ہے اس دوران۔ میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، جب وہ سامنے ہوتا ہے میں بھول جاتی ہوں، لفظ کھو جاتے ہیں، باتیں ذہن سے محو ہو جاتی ہیں۔ مومن شاہ نے ٹھیک کہا تھا، مجھے واقعی کوئی ڈھنگ نہیں، کوئی اچیومنٹ نہیں زندگی میں، کچھ نہیں کیا میں نے آج تک زندگی میں۔ وہ روحان سی ہوئی بیٹھی تھی۔ تو اب اپنی زندگی کا مقصد بناؤ، اپنے گھر کو، اپنے شوہر کو وقت دو، آگے بڑھو۔ وہ تمہارا بھرم نہیں توڑے گا، اسے مان رکھنے آتے ہیں۔ وہ خود کہہ کر گیا ہے کہ وہ برداشت کر سکتا ہے کیونکہ وہ عورت شیر ہے۔ تمہارا احسان ہوگا اگر تم اس بپھرے شیر کو سنبھالو۔ تم لوگوں کا سیٹ نہیں ہو رہا تو وہ باقی سب کی بیویاں بھی الگ کر رہا ہے، ذلیل انسان، اور اب پتہ نہیں کدھر دفع ہو گیا، مل بھی نہیں رہا کہیں۔ اس کو یاد آیا کہ وہ اصل میں عورت شیر کو ڈھونڈ کیوں رہا تھا۔ مومن شاہ کو یقیناً پتہ ہوگا، نہیں تو پھر ظاہر بھیا جانتے ہوں گے۔ انہی سے رابطہ کرتا ہوں۔ ان سب نے بہت کوشش کی مگر عورت شیر کام پکا کر کے گیا ہوا تھا، اس لیے ان کی نانا کے باوجود خواتین یونین منصوبے کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے فارم ہاؤس کی طرف روانہ ہو چکی تھیں۔ تو ظاہر کو بھی چڑھی تھی اس پر، مگر ظاہشہ نو لفٹ کا سائن دکھاتے یہ جا وہ جا ہو گئی تھی۔ کوئی بات نہیں، آنا تو ادھر ہی ہے نا، پھر تمہیں بتاؤں گا۔ باقی تو خیر تھی مگر میر شاہ کے ہاتھوں عورت شیر کی خیر نہیں تھی۔ اب میرال جانے سے پہلے مومن سے بات کرنا چاہ رہی تھی مگر وہ صبح سے گیا ہوا تھا، ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ اس نے ایک دو میسج بھی کیے مگر کوئی جواب نہیں آیا تھا اس کی طرف سے۔ اس کو اپنا کل کا رویہ کچھ نامناسب لگا تھا، پتہ نہیں کیوں اس کو اتنا غصہ آ گیا تھا، اور یکدم کیسے آ گیا تھا کہ وہ اتنا روڈ ہو گئی، وہ بھی مومن شاہ سے۔ کتنی رکھائی سے اس نے بات کی تھی، اور جواب میں وہ اس کو ریسٹ کرنے کا کہتے خاموشی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ السلام علیکم۔ کال ریسیو کرتے اس نے موبائل کان سے لگایا تو دوسری طرف سے سلامتی بھیجی گئی۔ وعلیکم السلام۔ لاسٹ ٹائم والی کنورسیشن یاد آتے وہ کچھ جھجک رہی تھی۔ میں نے میسج کیا تھا، تم نے جواب نہیں دیا۔ یہ میرے والے رنگ دنگ نہ ہی اپناؤ تو اچھا ہوگا۔ وہ بس دیکھا نہیں میں نے موبائل، ابھی اٹھایا۔ اس نے بہانہ گھڑا، خیر چھوڑو اس بات کو، میں بات کرنا چاہتا تھا مگر پھر مصروفیات کی وجہ سے ٹائم نہیں مل سکا۔ لمبی تمہید نہیں باندھوں گا، اس لیے سیدھا بات کروں گا جس کے لیے کال کی تھی۔ کون سی بات؟ وہ انجان بنی۔ تم اتنی انجان ہو ہانیہ مرتضیٰ، تم اچھے سے جانتی ہو کیا بات کر رہا ہوں۔ اب بتاؤ کیا سوچا ہے تم نے؟ مجھے نہ کوئی جلدی نہیں، نہ ابھی شادی وادی کا سوچا تھا، مگر ممی کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، وہ جاتے ہوئے بھی مجھے کال کر کے پوچھ رہی تھی، میں انہیں فائنل ہاں کروں تاکہ وہ تم سے بات کر کے تمہارا جواب لے سکیں۔ تم نے ایک بار کہا تھا کہ تم ایک مخلص دوست کی حیثیت سے مجھے گائیڈ کرو گے وغیرہ وغیرہ۔ ہاں، اور تم نے آن دا اسپاٹ میرے منہ پر کیا کہا تھا کہ میں تمہارا دوست ہی نہیں ہوں۔ دل شیر نے اس کو اس کا جواب یاد دلایا۔ مخلص تو ہو نا، پھر تم مجھے بتاؤ کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کیونکہ میں اپنے لیے فیصلہ نہیں کر پا رہی دل شیر۔ مجھے کبھی ایسی مشکل نہیں ہوئی، کوئی بھی فیصلہ میں بنا سوچے سمجھے فوراً سے کر لیتی ہوں، مگر اس بار نہیں کر پا رہی۔ اگر میری وجہ سے ہچکچا رہی ہو تو اس کی بالکل ضرورت نہیں کہ تم کسی قسم کی احسان مندی دکھانے کے چکر میں ہاں کرو۔ میرا یا میرے گھر والوں کا کوئی احسان وحسان نہیں ہے، تم ریلیکس ہو کر سوچو۔ اگر کوئی اور نظر میں ہے تو بتاؤ، میں ممی سے بات کروں گا، وہ وہاں دیکھ لیں گی۔ تم غلط سائٹ پر جا رہے ہو، کوئی نہیں ہے، کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تم اتنا تو جان ہی گئے ہوگے اب تک، مگر کیا تم میرے ساتھ نباہ کر لوگے؟ میں خود کو کوئی اعلیٰ عرفہ چیز نہیں سمجھتا ہوں، اور نہ میں لوگوں کو جنت یا دوزخ کے ٹکٹ دیتا ہوں۔
मैं तो खुद एक गुनाहगार सा बंदा हूँ, मगर फिर भी मैं उसकी राह पर चलने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारी बका इसी में है, वरना हम फना हो जाएंगे। मैंने एक दो बार सरसरी सा तुम्हें कहना चाहा शुरू में, मगर तुमने टोक दिया तो मैं खामोश हो गया कि दीन किसी पर ज़बरदस्ती थोपा नहीं जा सकता। लेकिन अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हें कोशिश करनी होगी, क्योंकि शोहर पर फ़र्ज़ है कि वो अपनी बीवी को दीन सिखाए। अगर खुद इल्म ना रखता हो तो उसके लिए कोई और बंदोबस्त करे। पहले भी कह चुका हूँ, अगर तुम ये कर सकती हो तो मैं आखिरी दम तक तुम्हारा साथ निभाऊंगा। ठीक है, तुम्हें जैसे ठीक लगता है वो कर लो। उसने फैसले का इख्तियार उसको सौंप दिया। मैं मम्मी को हाँ बोल दूँ फिर? मुझे नहीं पता। ठीक है, मैं उन्हें कॉल करके कह देता हूँ कि तुमने इनकार कर दिया। मैंने कब इनकार किया? वो उसके झूठ पर झट से बोली थी। लेकिन तुमने इकरार तो नहीं किया। मैं एक ही बार कर लूँगी कबूल। वो रोज़ रोज़ मुझसे ये नहीं होते इकरार। चलो फिर बाकी बातें तभी होंगी जब मैं तुम्हें और तुम मुझे कबूल कर चुकी होगी। अल्लाह हाफिज़। माहिमा के तो जैसे पैर ज़मीन पर नहीं टिक रहे थे। बाकी सबको भी कोई एतराज़ नहीं था। वो काफ़ी दिनों से उनके साथ उनके घर पर थी और किसी को भी उससे कोई मसला ना था। 2-3 दिन कैसे गुजरे पता ही ना चला, मगर ये 2-3 दिन जैसे हवेली के शादीशुदगान ने अपनी बीवियों के बगैर जिस तरह गुजारे थे ना, ये कोई उनसे पूछता। जायशा को आज शाम उपटन लगना था। वो सब मिलकर ढोलक रखे बैठी थी। जुरेज लोग अभी पहुंचे थे, मगर जायशा अमीर हवेली में ही रुका था, क्योंकि उसको शादी तक यहाँ आने का परमिशन नहीं था, जिस पर सब ने मिलकर उसको बहुत तंग किया। खूब हल्ला गुल्ला किया, मगर एक तिश्नगी सी थी और कुछ चेहरों पर इज़्तिराब भी था। जुरेज, बात सुनो मेरी। उष्णा उसको बहाने से उठाकर साइड पर ले गई थी। कोई मसला है क्या? नहीं मॉम, कोई मसला नहीं। आपको किसने कहा? तुम लोगों के चेहरे बता रहे हैं कि कोई बात है, वरना इतने खामोश तुम और अर्श तो हो ही नहीं सकते। उफ, डैड के साथ रह रहकर आप भी उन्हीं के जैसी नज़र रखने लगी हैं। बेफिक्र रहें, सब ठीक है। उसने टालना चाहा। माँ से झूठ बोलोगे तो क्या लगता है मैं जान नहीं सकूंगी कि तुम लोग मुझे बहला रहे हो? ये इतनी सिक्योरिटी क्यों बढ़ाई जा रही है? आप बस दुआ करें शादी खैर खैरियत से गुजर जाए। दरअसल जिन लोगों का केस भाई को मिला था, जो लोग भाभी को लेकर गए थे अरीशा के मुगालते में, वही ऑपरेशन जिसमें तुम सब जख्मी हुए थे, उसी की बात कर रहे हो ना? उष्णा का दिल होला। हमसे ज़्यादा नुकसान उनका हुआ था, इसीलिए वो लोग मसला कर रहे हैं। औरत भाई की जगह हैंडल कर रहा है, क्योंकि पहले भी भाई के साथ वही इस केस पर काम कर रहा था, मगर उसने एहतियातन सिक्योरिटी बढ़ाने का बोला है। डैड इस मामले को खुद देख रहे हैं, तो फिक्र की क्या बात रह गई? आप परेशान नहीं हो, सब ठीक है। अल्लाह हमारी फैमिली के सब अफराद को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। रात गए वो सब फ्री होकर अपने अपने कमरों में आई। अर्श वहीं रुका था और मीर शाह ने मुराद शाह को बोला था फार्म हाउस पर रुकने का, जबकि मोमिन और जुरेज को वापस बुलवा लिया था। ज़ाहिर ने अगर उसको इजाज़त नहीं तो वो उनको भी नहीं रहने देगा। जबकि मोमिन और जुरेज को वापस बुलवा लिया था ज़ाहिर ने। अगर उसको इजाज़त नहीं तो वो उनको भी नहीं रहने देगा वहाँ। अभी तो शादी के हंगामे शुरू हुए थे और वो पहले ही दिन थक गई थी। शावर वगैरह से फारिग होकर वो बिस्तर पर गिरी और चंद ही लम्हों में नींद की वादियों में उतर गई। कमरे में नाइट बल्ब की मध्यम सी रोशनी फैली हुई थी। जब बैक साइड की खिड़की खोलते कोई अंदर दाखिल हुआ, सीधा उसी की तरफ बढ़ा। कुछ देर उसको देखने के बाद वो दरवाज़ा खोलते बाहर निकल गया और कुछ देर बाद अपनी मतलूबा चीज़ हाथ में पकड़े कमरे में दाखिल हुआ। अपनी सारी कार्रवाई मुकम्मल करते वो जिस खामोशी के साथ आया था, उसी खामोशी के साथ खिड़की के रास्ते बाहर निकल गया। कोई आया था और चला गया, किसी को कानो कान खबर नहीं हो सकी थी। सुबह होते ही वहाँ रश लग गया। आज रात मेहंदी का फंक्शन था, जिसके लिए औरत शेर ने फार्म हाउस का वो हिस्सा मुंतखब किया जहाँ बाआसानी एक ग्रैंड फंक्शन मुनक्किद किया जा सकता था। नाश्ते से फारिग होते भी बहुत वक्त लग गया था। फिर दिलशेर और मोमिन तो लग गए काम पर। वो लोग इसरार कर रहे थे कि अगर निकाह पहले हो जाए तो मेहंदी का फंक्शन साथ ही हो जाए, मगर भला औरत शेर का, जिसने सारे काम ही उल्टे किए थे। ये सारे फसाद की जड़ वो जलील इंसान है जो यहाँ सब सत्यानाश करके टाइम से निकल गया यहाँ से। यार कैसी शादी ऑर्गेनाइज कर रहा है ये मनहूस। हमारी बीवियाँ तो हमें देखने को नहीं मिल रही। उन सब का बस नहीं चल रहा था कि औरत शेर का हशर बिगाड़ दें। मोमिन और दिलशेर खप गए थे इधर उधर चक्कर लगा लगा कर। मीराल उससे बात करने की कोशिश कर रही थी, मगर मौका ही नहीं मिल रहा था। हर वक्त वो किसी न किसी के साथ खड़ा मिलता, या शायद वो जानबूझकर ऐसा कर रहा था। वो उसको काम में मसरूफ़ देखकर मायूस सी पलट गई। जायशा को मेहंदी लग रही थी। ईशा लाते जाते बार बार दाखिली दरवाजे को देख रही थी। वो जाने कहाँ छुप गया था। दिलशेर, मोमिन और कुछ काम करने वाले लड़के यहाँ वहाँ फिर रहे थे, मगर जिसकी तलाश उसकी नज़र को थी वो नहीं था।
कभी जो मोमिन शाह के सोग मनाया करती थी, आज मोमिन शाह की मोहब्बत जाने कहाँ जा सोई थी कि वो सामने होकर भी उसके लिए कहीं नहीं था। जबकि उड़द शेर की जगह इस कदर वसी हो गई थी कि आज निगाहों को सिर्फ वही चेहरा मतलूब था। वो बहाने बहाने से उसी तरफ के चक्कर काट रही थी और ये बात सामने लॉन में बैठे मोमिन ने बखूबी नोट की थी और एक मैसेज भी लिख कर भेजा था उस ढीठ इंसान को जिसकी जिद अल्लाह की पनाह थी। पैर दुखने लग जाएंगे उसके, आज चक्कर काट काट कर हर बार देखने आती है और मायूस नज़रों के साथ पलट जाती है। उसकी निगाह आज तुझे हर जगह तलाश कर रही है औरत शेर, अब बस कर दे यार, आजा घर। जब कोई शिद्दत से मुंतज़िर हो तो उसे खाली नहीं लौटाते। आजा जिगर के टुकड़े, तेरी कमी अब मोमिन शाह के अलावा ईशल उरद शेर को भी शिद्दत से महसूस हो रही है। ना मुझे सता ना उसे आजमा। जायशा के बाद मिन्हल और मिराल को भी मेहंदी लगवाई गई। ईशल क्या करती फिर रही हो, आ जाओ। मिराल और मिन्हल के लग गई है मेहंदी, तुम भी लगवाओ। बीजान कहती हैं नई नवेली सुहागनों के हाथ सूने अच्छे नहीं लगते, आ जाओ जल्दी से। हुरिया ने ईशल को भी बिठाया। उसे वो दिन याद आया जब उसको पहली बार उसके नाम की मेहंदी लगाई गई थी और आज भी उसी की सुहागन के तौर पर मेहंदी लगाई जा रही थी। तब वो उससे बुरी तरह मुतनफ़्फ़र थी और आज वो उसकी शिद्दत से मुंतज़िर। यहाँ नाम लिख दो, उसने मेहंदी वाली को कहकर आज उसका नाम खुद अपने हाथों पर लिखवाया जो वाज़े पढ़ा जा सकता था। उसे लगा वो मुंह से तो शायद उसको पता नहीं कब कह पाएगी कि उसे माफ़ कर दे, कि वो शर्मिंदा है, तो क्यों ना वो कुछ ऐसा करे कि वो खुद ही समझ जाए कि वो उससे अलग नहीं होना चाहती। उसके लिए जब उरद शेर ने शादी की शॉपिंग की थी तो उसने 2-3 साड़ियाँ भी ली थी जो कि उसने कभी नहीं पहनी। मीराल ने ज़बरदस्ती उसके लिए आज के फंक्शन के लिए साड़ी निकाली थी। ईशल हरगिज़ भी रजामंद न थी साड़ी पहनने पर, मगर फिर अल्लाह भला करे फरवा का, वो सबकी लाडली थी, मगर डरती या दबती वो सिर्फ फरवा से औरत शेर से थी। गोल्डन ब्लाउज़ के साथ रस्ट कलर की साड़ी पहने वो बुरी तरह नर्वस हो रही थी। एक तो उसने साड़ी पहली दफ़ा पहनी थी, ऊपर से वो बंदा निकाह के बाद से नज़रें उसकी कभी उसकी तरफ अगर उठती तो 2 फुट की दूरी पर रहकर भी उसकी जान हवा करने का फ़न जानता था वो। उसकी आंखों की लपक ऐसी होती कि वो पिघलने लगती। ये मुझे पहना तो दिया, मैं चलूँगी कैसे, मैं पक्का आज कहीं ना कहीं गिर जाऊँगी, इतने लोगों की मौजूदगी में इंसल्ट करवाएंगी ये मेरी। वो उलझन ज़दा सी बुड़बुड़ाती ज्वेलरी पहन रही थी। साथ साथ उसने एक नफीस सा नेकलेस निकाल कर गले के साथ लगाकर सामने आईने में देखा तो दिल थक से रह गया उसे अपने एन पीछे देखकर। ये अभी कहाँ से आ गए यहाँ, उफ क्या था जो आज ये ना आते। जहाँ इतने दिनों से गायब थे वहीं एक दिन और भी गुजर जाता तो क्या था। जब से वो वापस आया था ईशल को उसका सामना करना दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगता था। वो नर्वस सी होती, दिल ही दिल में सोच रही थी। एक चोर नज़र सामने आईने पर दोबारा डाली मगर उसका अक्स जूं का तूं वहाँ मौजूद था। कहीं ये उसका वहम तो नहीं था। वो यकदम पलटी, वो वहीं था, यकटुक बिना झपकाए पलकें उसे ही देख रहा था। वो कदम कदम चलती उसके ऐन सामने जा रुकी मगर उसकी महवियत नहीं टूटी, वो अब भी उसी को ही देख रहा था। वो कंफ्यूज हुई कि वो सच में सामने आई या उसका वहम है। यकीन करने को उसने हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे पर हाथ फेरा तो वो मध्यम सा मुस्कुराया, साथ ही उसके हाथ में पकड़ा नेकलेस उससे लेकर उसका रुख दोबारा आईने की तरफ मोड़ा। आहिस्ता से बाल उठाकर एक कंधे पर डाले, ऐन उसके पीछे खड़ा था वो, उसके कैलोन के साथ सिगरेट की मखसूस सी स्मेल और उसकी उंगलियों का लम्स रगो जान में सनसनी सी जगा रहा था। उसकी जान मुश्किल में फंसी थी, जैसे अगर उनके दरमियान सब पहले जैसा होता तो उसका हाथ झटक देती, उसको खुद से परे धकेल देती, मगर जाने उस पल किस जज्बे ने उसे ऐसा करने से रोक रखा था। जो भी था मगर उसकी इंतहाई कुर्बत बर्दाश्त करने में जो भी था मगर उसकी इंतहाई कुर्बत बर्दाश्त करने की उसमें आज भी हिम्मत ना थी। उसने लॉक लगाकर रुख अपनी जानिब मोड़ा तो वो यूं ही बुत बनी खड़ी थी। वो मज़ीद कुछ लम्हे उसे देखता रहा। आंखों की तपिश शायद हद से सिवा थी, वो जैसे जल जाने को थी। मेरी तलब को दिन ब दिन बढ़ा रही हैं आप, बेखुद लहजे में शोलों की गर्मी थी। कानों में मोमिन शाह का लहजा पूरी शिद्दत से गूंजा। वो अपने किए पर नादिम है औरत शेर, और मर्द को ज़ेब नहीं देता कि वो औरत को झुकाए। जहाँ इतना कर लिया तुमने तो अब थोड़ा सा ज़र्फ और दिखाओ, आगे बढ़ो और थाम लो उसको। तुम्हें एहसास भी है कि तुम किस कदर हसीन लग रही हो। यूं बन सवर कर सामने आओगी तो फिर सारे इल्ज़ाम मेरे सर आएंगे। तुम यूं शोला ज्वाला बनकर कहर बरसाओ और मैं एहतजाज भी ना करूं, ये तो फिर नाइंसाफ़ी हुई ना। वो नज़रें उस पर से हटा चुका था मगर लहजा साफ बता रहा था कि उसके अंदर किस कदर हलचल थी। वो रुख मोड़े सिगरेट होंठों में दबाए लाइटर से उसे शोला देख रहा था। ईशल ने उसको सिगरेट सुलगाते देखा तो उसे अंदाज़ा हुआ कि जुरेज ने ठीक कहा था, वो आजकल ज़्यादा स्मोक करने लग गया।
उसने तिरछी नज़र से उसे देखा। ऊंचा लंबा कद, कसरती जिस्म, दमकती रंगत और पुरकशिश नैन नक्श, वो किसी का भी ख्वाब हो सकता था। मगर कुछ दिन पहले तक वो अच्छा इंसान नहीं था, कम अज़ कम उसकी नज़र में तो नहीं था, हरगिज़ नहीं था। लेकिन आज वो सोचती तो शर्म से और हया से आंखें झुक जाती। वो खामोशी से आगे बढ़ने को थी, जब भी उसका पाँव साड़ी में अटका और वो बुरी तरह लड़खड़ा कर गिरने को थी। उसने सिगरेट जल्दी से होंठों में दबाते दोनों हाथों से उसे संभाला। उस पल उसके हिसार में वो जैसे आतिशफिशां के सामने थी। उसके बाजुओं के घेरे में जलकर खाकस्तर हो जाने को थी। वो उस पर झुका था, जलता हुआ सिगरेट होंठों में दबाए वो पुरशोक निगाहों से उसे देख रहा था। वो संभल कर पीछे हटी, सांस जैसे सीने में अटक चुकी थी। आज वार पे वार कर रही हो क्या? आज मेरी जान लेने का इरादा है? सिगरेट का धुआं फिजा में छोड़ते वो 2 कदम उसकी तरफ बढ़ा। खुदारा ऐसे तेवर न दिखाओ कि आज तोबा टूटने पर माइल हो जाए। तमन्ना बेताब सही, खुद पर कंट्रोल पूरा सही, मगर ये जो मिल्कियत का एहसास है ना, ये कमबख्त कुछ गुस्ताखियों पर उकताता है, उकसाता है। और फिर तुम भी तो आज जाने क्या तय किए बैठी हो, कुछ बताती भी नहीं हो। ये सजावटें अगर मेरे लिए नहीं तो फिर क्यों हैं? एक लंबा कश लेते वो उसी को देखते हुए बोला। आज वो बुरी फंसी थी, आप चेंज कर ले। और कुछ ना सही तो उसको यही बहाना मिला उसको सामने से हटाने का, आप चेंज करवा दें। आज वो उसके लिए आपका सीगा इस्तेमाल कर रही थी तो वो भी तुमसे आप पर आ गया। उसका लहजा साफ बता रहा था कि उसकी हालत पतली हो रही है और वो उससे लुत्फ उठा रहा है। चलो चेंज नहीं करवाना तो कपड़े ही निकाल कर दो। वो अगर शराफत का मुजाहिरा कर रही थी तो आज ज़रा देर को ही सही